एक चालू हाँ हो गया। क्या मेरा वीडियो प्ले नहीं हो रहा? हाँ एक शुरू हो गया। स्ट्रीम चलती है। हाँ चालू तो कर दिया। पता नहीं चल अब हो रहा ठीक है है कि शुरू नहीं, एक कर। बार चेक करते ले ते अपना फ़ोन से हम चेक कर। हम डिवाइस में चेक कर रुके होल्ड का हम चेक We कर। started Zen from scratch, starting with a clean sheet of paper. Zen turned out to be a grounds-up design, which ऑनलाइन ये doesn't come कैसा along करके? very often. In the life of an engineer, you get to build something this significant once, twice, if you're डॉक्टर lucky, लिस 3 times in your lifetime. AMD enables the engineers to go off and innovate and हाँ to लाइव bring लाइव to हम लोग लाइव है। market what it is आवाज that they देख। dream about. I'm extremely pleased to show you for the first time the name of our new Zen. Now it's time for you to see Ryzen in action. We wanted to ये AMD का disrupt the PC market. We wanted to bring innovation, choice, and performance to as many people as possible. In high-performance PCs, it was about delivering more performance at every single price point. चल रहा है ठीक। Ryzen Threadripper acknowledges चल that ओके स्ट्रीम पर there are ओके। people who want to create and game ठीक है, on the देखें। same PC and क्या need the दिखा रहा है आज? scalability and need the performance to do that. And that's देखते हैं AMD क्या लॉन्च करता है Zen 3 के लिए। ठीक है। is our commitment to our customers that we would deliver to the roadmap that we set out, and momentum is now on our side. The anticipation around 3rd Gen Ryzen is really impressive. Meet the world's first 16 Zen 2, core Zen 3 gaming processor. now in Zen 2019, 3rd Gen Ryzen मानना Z. पड़ेगा Zen 3 का सादा लोग Zen 4 अभी तक डिजाइन लग भी गया। Zen 3 लॉन्च हुआ भी नहीं है। Zen 4 It डिजाइन makes me so डिजाइन proud to be able to look back इसका लिए क्या and say that I was part of that. हाँ Our बोल। mission with Ryzen has इसका रिगार्डिंग क्या कहना? Zen 3 अभी तक हुआ नहीं है पर Zen 4 ऑलरेडी मतलब क्या बोलते डिजाइन अभी तक मतलब काम उसका पर चालू sure that they come to fruition. Our goal is to give you the best. Welcome everyone. Big welcome to all of you and thank you all for joining us today. I've been looking forward to this moment all year and I know many of you have too. अकेले ही It's been a खुश है। challenging year for everyone as we've navigated the COVID-19 pandemic globally. But one thing we've learned is just how important high-performance computing technologies really are. From work to school to gaming to entertainment, the PC is now the computing platform of choice in 2020. And I'm really excited to show you today what we have been working on for the next-gen PC platforms, and especially for तेरा all ऑडियो में gamers. बैकग्राउंड Now, कहीं आ it's रहा है already किसी been an स्पीकर में incredible रखे year थे for gamers. There's so much excitement around the next-gen consoles. स्पीकर में रखा We है are so proud to power the new Sony PlayStation 5 with a high-performance custom तो chip हमको क्यों आ रहा featuring था? our AMD Ryzen CPU and AMD Radeon GPU technology. And we are equally proud that custom AMD processors also power the new Microsoft Xbox Series X and Series S consoles, again featuring our high-performance Ryzen and Radeon technology. These consoles are bringing just incredible technology to gamers all over the world, and they're हाँ really तो a result of रीजन just deep engineering partnerships RDNA का with था many Xbox पे leaders सॉफ्टवेयर at both Sony देखे and थे Microsoft. अनबॉक्सिंग उस दिन Now, gaming is at the heart of so much of what we do at AMD. Xbox का मॉर्फिंग We're अच्छा talking किया about है PCs, RDNA 2 उसमें consoles, भी Zen 2 है मगर cloud gaming, आर्किटेक्चर Zen and 2 है mobile. AMD loves gaming, and we like to say gaming begins with AMD. So today, we're going to talk specifically about our next-gen क्या बोले gaming platform. So let's talk a little bit about Ryzen. Now, you guys know we brought the first generation of Ryzen to market in 2017. And we actually had one goal. It was to build the best PC desktop processor possible. Now, we knew we wouldn't get there in one step, but with each generation of Ryzen, it's gotten better. And we focused on how do we deliver more performance? How do we deliver the best features? And how do we give more capabilities to all of you PC enthusiasts so that you can do more than you ever thought with your desktop or in your notebook? And we've made great progress. We started with Ryzen in desktops, and then we introduced Ryzen Threadripper in high-end desktops. And now, actually, Ryzen is in many amazing notebook systems with our Ryzen 4000 series.
I think it's safe to say that AMD loves the PC, and I think also it's safe to say that PC users love Ryzen. So we really appreciate that. Now look, let's just focus on the desktop for a few minutes. The progress we have made over the last few years has been really amazing. If you look at the market before Ryzen, the desktop PC was on sort of an incremental performance made over the last many years has been really. Now, over the past 3 years, we've significantly changed that trajectory and really completely reset expectations as we've gone from first-gen Ryzen to second-gen, now to third-gen Ryzen. We were the first to launch a 7-nanometer desktop processor, and today, third-gen Ryzen leads in so many areas. We're the highest in multi-threaded performance. We are the best in terms of power efficiency, and third-gen Ryzen is an absolutely great gaming processor. But as you know, we're really ambitious. So our work with Ryzen is never done. Our engineers have been on this maniacal focus of what can we do more? What can we do better? So today, we're here to talk about our brand new CPU core. You've all been waiting for it. It's all about Zen 3. And with Zen 3, we focused again on bringing the best to the PC market. I'm so proud of what we've accomplished. Zen 3 increases our lead in overall performance. It increases our lead in power efficiency. And also now, it delivers the best single-threaded performance and gaming performance as well. We've made massive changes in the core architecture, and I'm sure all of you want to know what's inside Zen 3. So let me hand it over to AMD CTO Mark Papermaster to give you all the details. Mark? Well, thank you, Lisa. I couldn't be more excited than to share a little bit more about Zen 3 and our progression to get here. It's been quite a journey. We set a course over 5 years ago to design a family of high-performance x86 CPUs. Our goal, very simply, outright leadership. We set up the team so that development of multiple processor generations could be done in parallel with designers leapfrogging one generation to another. This has resulted in consistent delivery to the market as promised. I could not be more proud इंटेल को इतना पुराना कंपनी में टक्कर दिया है. इंटेल तो सो क्या सांस लेकर कुछ तो ले नहीं रहा. इंटेल का रॉयल्टी खा रहा है. वो इतना महंगा का रॉयल्टी खा रहा है कुछ नहीं. अब इंटेल का ये है कि कुछ भी नहीं खाएगा इंटेल होगा. अब वो दौर खत्म हो गया. In a single generation. It built a strong base for us to build upon. पब्लिक जो है देख के खरीदता है. हर एक सीपीयू हर एक प्रोडक्ट का पब्लिक उसका रिव्यू उसको YouTube में सर्च करता है. उसका रिव्यू कैसा आ रहा है, परफॉर्मेंस उसके बाद पब्लिक उसको बाय करता है. तो है. That 7-nanometer efficiency enabled leadership, multi-core performance, and core density. The innovative chiplet implementation allows us ease of manufacturing with the small 7-nanometer die and scalability to leadership core counts. And now Zen 3. Wow, what a great job by the design team to improve every aspect of the CPU, delivering leadership performance in that same 7-nanometer node. Higher frequency, higher instruction per clock, with design improvements across all of the CPU components, and lower latency on top of that. You look at some of the key elements. There's a new layout of our processor that brings all the cores onto a unified 8-core complex. And that accelerates core-to-core communication. That's especially helpful for gaming workloads. That consolidation actually allows every core to directly access the 32 megabytes of L3 cache. And that dramatically accelerates workloads that are latency sensitive, like gaming. And finally, significant changes throughout the Zen 3 architecture, generating a 19% instruction per clock uplift. That's on top of the significant gains that we had just in the mid of last year with Zen 2. Altogether, Zen 3 is our most significant architectural update yet across the Zen family. We made the Zen 3 floating point and integer execution units wider, more flexible, and allows us to deliver more execution capability to the user at a lower latency. We've increased the number of loads and stores that we can do versus Zen 2, helping us feed those wider execution capabilities of Zen 3. We've added
more branch prediction bandwidth. It allows Zen 3 to tackle back-to-back predictions much more quickly, reducing the delays. We call it zero bubble. These innovations keep Zen 3 ahead of the industry norm on generational improvements and position Zen 3-based Ryzen to be a clear desktop performance leader. Microprocessor performance engineering never has one single bullet. It takes focused microprocessor engineering. It's a broad set of improvements that are needed to make a great architecture. It takes innovation on all of the key levers. Zen 3 is a total front-to-back redesign. The microarchitecture had laser focus on performance on every element, end-to-end improvements, the caching, load store, our execution units, our prefetching, our dispatch, our decode. Zen 2, in fact, had been organized with 2 4-core cache complexes. It was tightly integrated. That was a very good design, but what we found is that we brought that together into that single unified cache core complex, that we brought that direct access to 32 megabytes of L3 cache rather than the 16 megabytes that we have with Zen 2. That direct access to a cache pool of this size is very significant for gaming. They tend to make frequent use, of course, of memory subsystem, and in fact, many games have a dominant thread, and that makes especially heavy use of the cache, and that thread now sees effectively twice the L3 cache in Zen 3. So every core can now communicate directly to the cache without traversing across the die, and that reduces latency. And it stays synchronized for applications using AI, audio, physics, and more. You can see that we continue our relentless commitment to energy efficiency with every generation. We're always honing our design methodologies to focus on performance per watt, even as we make the processors faster for gamers. Zen 3 is no different, delivering up to 24% improvement in power efficiency versus the prior generation. That's double-digit performance per watt uplift in the same process node. And that's on top of all the architectural changes that we drove in to drive up the performance. Our commitment to energy efficiency across time has put us in the driver's seat. Today, we're more than 2.8x more efficient than competing high-end desktop processors. And that's only a strengthening of the leadership that we demonstrated during the prior Zen 2 era. We will not let up going forward. We're focused on execution. Zen 3 is shipping as promised in the 5nm Zen 4 on track, in design. AMD team is hitting on all cylinders, and there's no shortage of innovations for the next generation of Zen processors to keep AMD in the forefront and deliver the best compute experience for our customers. Thank you. And let me welcome back Lisa to now show off our Zen 3 and new Ryzen processors. Thank you, Mark. That was great. I'm so proud of what the team has accomplished with Zen 3. We really focused on what is most important for gamers and enthusiasts. And at 19% IPC increase, it's our largest increase generation over generation since we launched the Zen family. So now let's see Zen 3 in action. I'm so proud to show you for the very first time the AMD Ryzen 5000 series for high-performance PCs. The world's first Zen 3 powered CPU. This is the AMD Ryzen 9-5900X. 12 cores, 24 threads, and a boost up to 4.8 gigahertz. It's a very special product, the ultimate enthusiast processor. Compared to the 3900 XT, the 5900X has 19% higher IPC, higher clock speeds, and all of the Zen 3 core improvements that Mark talked about, all while remaining at 105 watts. This makes Ryzen 5900X a big upgrade from 3rd gen Ryzen all around, but especially in gaming. Now let me turn it over to Robert Hallett to show you the 5900X in action. Thanks, Lisa. Hey everyone, let me give you a sense of just how much faster the 5900X is compared to our current best, the 3900 XT. To do that, we're going to use Shadow of the Tomb Raider, a game I personally love, and a game reviewers often look at to judge CPU performance. We're going to run the built-in benchmark here at 1080p, using the high image quality preset on 2 otherwise identical systems.
You can see a whopping 28% increase just by moving from the 39XT to the 5900X in Shadow of the Tomb Raider. And as you will soon see, the performance from the 5900X is faster than the competing processors as well. Now, as any enthusiast knows, 28% from a processor change is a massive upgrade. But that's what AMD customers like me can look forward to. This truly demonstrates the gaming strength for Zen 3 when you combine the historic IPC uplift, unified cores, and unified cache pools. Now, as we zoom out to look at a wider set of games, you can see that the 28% uplift in Shadow of the Tomb Raider is joined by many titles with significant double-digit performance improvements. The gains are even bigger in titles like CSGO and League of Legends, where the highest possible frame rate is practically the #1 priority to be competitive. Overall, gamers upgrading from the Ryzen 3000 series to the Ryzen 5000 series can expect an average performance improvement of 26% at 1080p. 1080p. Again, this is just a monumental performance jump for an in-socket upgrade in the same motherboard, and a true testament for how good Zen 3 is in gaming. Now, as many know, strong gaming performance relies on strong single-core performance. That's exactly what Zen 3 has. And I want to show you using Cinebench R20 single-thread. There are many ways to assess single-thread performance, but Cinebench is a fast and easy tool that you can run at home. And it's one of the 25 workloads that we used to calculate the 19% improvement for Zen 3's instructions per cycle. As you can see, the 5900X is the first desktop processor to ever break a 600 score. And we don't break it by a little, we break it by a lot, with a score of 631. We at AMD heard you loud and clear as you challenged us to continue investing in single-core performance, and the results speak for themselves. The combination of IPC, frequency, cores, and cache give AMD the fastest cores in the desktop market and give you the best possible gaming performance. So let's take that landmark core performance into a head-to-head battle. Across the same set of games you just saw, the AMD Ryzen 9 5900X is a clear winner at 1080p. As I promised you, AMD wins in Shadow of the Tomb Raider by +6, and is joined by many other games popular with reviewers and users like you. League of Legends and CSGO are once again standout victories for the Ryzen 9 5900X. So that was a lot of data very quickly. Let's take a step back. Let's recap. You saw an average uplift of 26% for Ryzen customers upgrading from the 3000 series to the 5000 series. You just watched AMD deliver the highest single-core performance in the entire desktop PC market. And you just saw AMD clearly offer the best performance of any gaming processor on the market. I will put it plainly. We know that you're going to wait for benchmarks, but customers who buy processors purely for their gaming performance will absolutely want a Ryzen 9 5900X for the best possible PC gaming experience. Now let's bring Lisa back up to give you more details on these awesome gaming processors. Thanks, Robert. That was fantastic. I hope you're all now convinced that the Ryzen 9 5900X is the best gaming processor in the world. Now let's look at the stack. In the 5000 series, we have a great choice for every gamer or PC enthusiast. In addition to the 5900X, we have the 5800X, an 8-core, 16-thread processor with boost frequencies up to 4.7 gigahertz at 105 watts. And we also have the 5600X, a 6-core, 12-thread CPU with boost frequencies up to 4.6 gigahertz at 65 watts. Now let's talk about price and availability. The 6-core 5600X is $299. The 8-core 5800X is $449. And the amazing 5900X, combining the leadership performance and power efficiency of Zen 3 in a 12-core 7nm design, is priced at $549. And all of these will be available globally on November 5th. We're really proud of the 5000 series, but you know we're not done.
We love our enthusiasts, and there's one more processor in our stack, which is the ultimate processor for gaming and content creation. For those of you who want the very best processor in a desktop PC, we have the 16-core Ryzen 9-5900X. The 5900X is simply an amazing CPU. 16 cores, 32 threads, and our fastest processor with boost frequencies up to 4.9 gigahertz. The 5950X breaks the Cinebench R20 single-threaded record that Robert set just a few minutes ago with a score of 640. It is truly the best in class in every dimension. Best gaming performance meets best processor for content creation, and all of this still at 105 watts. Now let's take a look at some of the performance. If we look at the generational uplift from the 3950X to the 5950X, we see up to 27% more performance in CAD workloads and 12% more performance in rendering workloads. More impressively, we see up to 29% more gaming performance. And this is really how we bring the best of both worlds together. The best for gamers and the best for creators. And now, if you put 5950X against the top of the stack from the competition, we see that the 5950X provides up to 59% more creative performance in rendering workloads, double-digit wins in video editing and software compiling, and we also win in lightly threaded CAD workloads as well. We're really proud of the fact that we also win in gaming. There's nothing like the 5950X in the world. One processor that delivers the best power efficiency, our highest clock speeds, the highest single-core performance in the industry, and the highest multi-core performance of any gaming processor. And it's priced at $799 and will also be available globally on November 5th. I hope you're now as excited about AMD Ryzen 5000 series as I am. Zen 3 is really amazing, and I'm so happy we could show it to you today. But you guys send me a lot of notes and a lot of tweets, and I know that you're not just excited about Ryzen 5000 series, but there's a tremendous amount of enthusiasm and curiosity about our Radeon lineup as well. So the next few weeks are just an amazing time for us. In addition to introducing our Ryzen 5000 series, we're also going to introduce our next-gen Radeon GPU, and I want to give you a small preview of that today. This is the AMD Radeon RX 6000 series, which we now affectionately call Big Navi, thanks to many of you who nicknamed it for us. It is absolutely gorgeous and by far the most powerful gaming GPU we have ever built. We got a lot of requests from our fans on social, and I heard a whole conversation on The Full Nerd last week about wanting to see Zen 3 and Big Navi in action. So today, I'm going to show you a preview of what you can expect from AMD Ryzen 9-5900X and our Radeon 6000 series. We've been doing a tremendous amount of work optimizing gameplay with Ryzen 5000 and Radeon 6000 series. So let me show you today Borderlands 3, which is a very popular AAA title running at 4K resolution on the Ryzen 5900X and our Radeon 6000 series. Just take a look at that performance. Over 60 frames per second at 4K with beautiful image quality. We are super excited with what we've accomplished with Big Navi. In addition to Borderlands 3, here's a bit more of a performance preview on Call of Duty Modern Warfare and Gears of War 5 at ultra settings in 4K. And again, what you see is tremendous 4K performance across the board. We still have a few weeks until launch, and the team is working really hard on fine-tuning things. But I hope you're as excited as we are about what Ryzen 5000 series and Radeon 6000 series can do together for your next generation PC. So that brings us to the end. I hope you enjoyed today. It's been so much fun spending time with you. We have a lot more to show you later this month, so join us again on October 28th, where we'll give you the full story of our AMD Radeon RX 6000 series. And make sure you mark your calendar for November 5th to find Ryzen 5000 series on shelf worldwide. Take care and see you soon. अब क्या कहते हैं? अब तो कहना ये प्रॉमिसिंग का AMD का प्रोसेसर प्रॉमिसिंग है, बट देखना पड़ेगा ऑन टेबल आ जाने के बाद क्या परफॉर्मेंस रहेगा.
ये तो कंपनी अपना तो बुराई तो कभी करेगा नहीं, कोई भी वो बात कंपनी, तो एनवीडिया है, हो, वो इंटेल हो, बात तो एएमडी है, हो। वो बात तो है। अब जैसे कि एनवीडिया लॉन्च में बोले मैं ग्राफिक कार्ड ये है, मेरा ग्राफिक कार्ड वो है, आने का बाद इतना सारा कंपनी आने का आने का बाद तो लगा। पता चल ही उसके गया बाद क्या था। हाँ, तब ये अब एएमडी के साथ भी होगा, अब आने का बाद समझ में आएगा सेम जितना परफॉर्मेंस दिखा रहा है उतना बूस्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है उस प्राइस में। तो इसलिए जो भी हमारा वीडियो देख रहा है वो हमारे प्रीवियस वीडियो देख ले AMD राइजन के ऊपर, उसमें आपको डिटेल मिल जाएगा कि राइजन 3 में क्या कैश लेआउट है, उसका CCS का क्या डिफिनेशन है। इसके ऊपर आपका कंफ्यूजन है तो अगर आपको पता है तो आपको जरूरत नहीं है, पर आपको नहीं पता तो हमारे नेक्स्ट उस वीडियो में जाकर प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं आप। इसके बारे में फुल डिटेल है और ये भी है जो किस तरह आने वाला है, उसमें क्या उसका टेक्नोलॉजी है, कौन सा आर्किटेक्चर है, कितना रैम है, उसकी डिटेल भी उसमें है। तो चलिए आपके लिए अब इतना ही, हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इतना ही का है अभी तो बोलेगा नहीं, इतना ही करेगा ते इसका बारे में बताएगा नहीं पब्लिक को। AMD का मार्केट स्ट्रेटेजी अच्छा की है, लेकिन जितना बात बताई सो उसमें से सोच के देख का हिसाब से वो बना रहा है। AMD जो हिसाब से बना रहा है वो तो सही है, पर देख दिक्कत यहाँ पे भी है ना, यहाँ पे इंटेल को पता है AMD अब तो लाने वाला है। ऐसा नहीं कि इंटेल को नहीं पता, इंटेल को ही पता है AMD अपने लाने वाला है, पर उसका बात क्या। अभी जो बात किया वो तो बात किया सिर्फ लॉन्च का, अब देखो आएगा नवंबर तक, फिर मार्केट में अगर कॉम्पिटिटिव प्राइस में पब्लिक को देखना भी पड़ेगा ना, रुकना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, इतना देर तक आएगा, आने का बाद उसको लेने का चांस, उसका बाद फिर मार्केटिंग में भी तो देखो तो पता ही है डिलीवरी का, एनवीडिया का तो देख ही लिया 3080 का कितना चाप पड़ा थर्ड पार्टी में। AMD का ऐसा नहीं लगता डिलीवरी प्रॉब्लम होगा या फिर मार्केट अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम होगा। AMD इतना करा तो मतलब उसको आप देख, AMD सेल करना चाहता अपना प्रोडक्ट, ठीक है, अगर वो अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम रख लेगा तो कैसे सेल होगा। वो बात और बात है, है वो बात है। और अभी बात अभी नया है ना मार्केट में, अभी तो सोच जो बंदा पहले बना लिया है CPU, जो पहले बना लिया, मान ले कि अभी उसको लेने का रहेगा, ठीक है, चल वो ट्राई किस, उसका बहुत इच्छा हुआ, या छोड़ जो नया बंदा बना रहा है अभी, जो नया अभी बिल्ड करेगा, तो उसको क्या लगता है कितना जल्दी मिल जाने वाला है? अभी का मार्केट का हालत देख के कैसा लगता है? नया बंदा खरीदने वाला है तो हम तो बोलेंगे नया बंदे को पहले बेंचमार्क आने तो प्रॉपर्ली, पहले थोड़ा सा वेट कर लो, क्या आ रहा है, थोड़ा सा वेट कर लो। हाँ, अभी मार्केट में आ हम कल जाकर खरीद लिया, वैसा करने का जरूरत नहीं है। आप ऐसा कर सकता है जिसका पास अंधा पैसा है। CPU अंधा पास है तो भाई आप जाकर 5 छोटे खरीदो, खरीदना कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। किलो हिसाब में खरीद लो। आप 3 साल या 5 साल यूज करना चाहते हैं तो आप पहले इसका देख लो, पहले आने के बाद मार्केट में कंपेयर कर लो इंटेल का इससे। फिर भी अब मैं तो बोलूँगा इंटेल से बेटर है, बहुत बेटर है, पर फिर भी कंपेयर करना बेटर होगा कि हम लोग अपना खर्च कर रहे हैं पैसे तो सोच समझ से खर्च करना ही बेटर होगा। ऐसे अंधा जाके हम लोग खरीद नहीं सकते। और इनवीडिया क्या किया, फाउंडेशन दिखाया, बेंचमार्क दिखाया फाउंडेशन का, पर सब बिका है अपना थर्ड पार्टी कस्टम वाला। तो इनवीडिया तो तेरे को पता ही है उसका मार्केट में कितना ही है, तेरे को तो पता है अभी जो उसका मार्केट में इसका वजह से वो बिक्री हो रहा है, उस मार्केट में एक दबदबा बना लिया है, तो आंख बंद करके अगर जहर भी बेचेगा तो बिक्री हो जा रहा है। लेकिन अभी का पब्लिक थोड़ा स्केप्टिकल हो रहा है, ऐसा बात नहीं कि सभी अंधा पब्लिक है, थोड़ा पब्लिक अभी भी स्केप्टिकल है, लेकिन बात आएगा अभी देखना होगा कि ये जो नावी GPU आ रहा है वो कितना टक्कर देगा, तब तो मज़ा आएगा। नया सिस्टम जब बिल्ड करेगा पब्लिक तो किसका तरफ जाएगा? AMD का प्रोसेसर तो ले लेगा चलो मान लो, लेकिन जब GPU का बारे में बात आएगा तो देखते नावी अगर टक्कर दे दिया तो AMD का सोच कितना बिक्री होगा, सेल देखेगा, सोच के देख। AMD का सिर्फ प्रोसेसर का साथ साथ प्रोसेसर का ये सब छोड़, अभी PS5 भी है, ठीक है, ऑनलाइन में PS5 भी है। अब PS5 भी AMD का है, अब प्रॉफिट AMD मतलब दोनों हाथ से पैसा कमा रहा है, दोनों हाथ से बटोरेगा, दोनों हाथ से। आदमी को सिस्टम बिल्ड नहीं करना, हमको सिर्फ गेमिंग करना है, हमको PC बिल्ड नहीं करना, वो PS5 खरीदेगा। PS5 में क्या है, AMD का सब है उसमें। हाँ, वो बात तो हाँ, AMD तो सभी जगह छा रहा है अभी तो। अब Nvidia क्या है ना, अब आज AMD आके एक काम अच्छा किया Nvidia को, अपना Nvidia को क्या करना पड़ा, अपना प्राइस टू परफॉर्मेंस को प्राइस में अपना देखना पड़ रहा है कि AMD जो अभी लाएगा अपना नावी GPU, वो प्राइस सिंपल है, काम में 16 GB का है, पर AMD का हाथ में भी अब Nvidia हाथ में भी 1360 Ti भी रखा हुआ है जो लॉन्च करेगा AMD का 6 लॉन्च के बाद। अच्छा,
मतलब सिंपल है एमडी का मतलब ओपनली मार्केट में थोड़ी ना घूमने देगा भाई, तुम कोई प्राइड नहीं घुस सको। हाँ वो आ रही इधर है, क्या बोलते हैं उसका, इसका क्या क्या प्राइस रखा है वो, 549 बोला ना, 59 का 5900 इसका 549 का, लगभग लगभग 40,000। तो अभी तक वो 40,000 में ये वाला कौन सा मिल रहा है अभी जो 40,000? हम बता रहे, आप हम बता दे रहे, अभी बता दे रहे कि आप लोग कितना कितना कौन सा सीपीयू मिल रहा है, अभी हम क्लियर कर दे रहे। एक सीपीयू 5600X जो आपका $300 का है, $300 अभी पड़ेगा। $300 मतलब करीब बता रहे वही तेरा 22-25,000 इंडिया का है, 22 अभी 18% कस्टम फर्स्ट टाइम अभी लेके कम से कम 25,000 तक टच हो सकता है। 22-24-25 में जब 22-24 देखे, अब वो लोग मार्केट भी तो डाउन करेगा ना, कॉम्पिटिटिव प्राइस तो रखना होगा इंडिया में। ठीक है, जीएसटी भी तो है तब। हाँ वो तो है, वो तो रहेगा ही। अब तुम अब एक अभी लेकिन Ryzen 3 यार ये नहीं दिया है और अभी। सुन ये तेरा 22,000 में तेरा 6 कोर 12 थ्रेड मिल रहा है, ठीक है, 6 कोर का साथ 12 थ्रेड। हाँ सोच रहे थे जिसका बूस्ट क्लॉक तेरा आराम से जाएगा 4.8 गीगाहर्ट्ज, 4.8 गीगाहर्ट्ज आराम से जाएगा। ऊपर से ओवर क्लॉकिंग अलग। हाँ ओवर क्लॉकिंग का चूल अलग। हाँ अब ते 450 में तो कितना मिल रहा है, 8 16 थ्रेड। और अभी जो गरीब बिल्ड किया है 6 और 12 थ्रेड, वो भी तो करीब करीब तेरा Ryzen तो 3600 भी तो उतना ही है ना, 20,000 22,000 करीब में है। तो ये भी अगर उसी प्राइस पॉइंट में लॉन्च हो गया। हाँ पर दिक्कत क्या है ना, उसका जो गीगाहर्ट्ज है मतलब उसका स्पीड उससे कम मिल रहा है, इसका स्पीड कम मिल रहा है, प्लस ये नया आर्किटेक्चर पे है। डिपेंड यही है कि इसका परफॉर्मेंस ज़्यादा डिपेंड करेगा क्या कि नया आर्किटेक्चर पे है, यही मज़ा आएगा। हाँ नया आर्किटेक्चर पे जो लॉन्च हुआ है इसी का वजह से तो अभी देखते हैं 3600 अगर डिपेंड करे 3600 सबको मिलना चालू, अभी भी तो 3600 का तो दिक्कत है ना। अभी अमेज़ॉन पे 24,000 में मिल रहा है 3600, सोच रहा है 24,000 अमेज़ॉन में 24 मिल रहा है। लॉकडाउन का वजह से प्रोडक्टिविटी का 17,000 में मोटी इम्पोर्ट 17,000 का माल 24,000 में मिल रहा है, 23,000 सॉरी 23,500। अभी भी इंपोर्ट का प्रॉब्लम हो रहा है ना, इंपोर्ट अभी भी प्रॉपर्ली शुरू नहीं हुआ है। एक बार जब तक इंपोर्ट शुरू नहीं होगा, ये प्रोडक्ट सिंपल है, ये AMD कहाँ का है? लेकिन अभी उन लोग का फ़ायदा होगा नवंबर या दिसंबर स्टार्टिंग में फ़ायदा होगा, जो लोग 3600 पे बनाएगा। क्या 3600 भी ख़राब प्रोसेसर नहीं है, 3600 अब तक का बेस्ट प्रोसेसर जा रहा है Ryzen का बजट रेंज में। 17-20,000 में अब तक का 6 और 12 थ्रेड का प्रोसेसर सबसे ज़्यादा बिका है, तो 3600 ही बिका है। 20,000 का प्रोसेसर तो ये भी है, 4,000 जो आदमी 20,000 का प्रोसेसर खरीदेगा तो 4,000 मिला के आपने 5600X क्यों नहीं लेगा? अरे नहीं, हम उसका बात नहीं कर रहे हैं, जो लोग अभी 3600 पे है समझे, उसको तो उसका एक तो बजट भी तो है ना, 1,000 रुपया बजट मैटर करता है। वो अभी जाएगा, वो GPU भी लेना होगा उसको, फिर उसका बाद मदरबोर्ड का भी नया नया आया हुआ है, 550 आया हुआ है, अभी 550 पे आया हुआ है, 450 तो चल ही रहा था, 550 में भी ऑप्शन दे दिया है अब। तो अब पब्लिक तो कंफ्यूज होगा ना, इसके ऊपर तो तेरे को वीडियो बनाना होगा। वीडियो तो बनेगा, सिंपल है भाई, सबका वीडियो बनने वाला, आपको खरीदना क्या है इसमें, इसके बाद तो वीडियो बनेगा ही। तब कैसा लगा रहा, एक्सपीरियंस कैसा रहा है इसका? नहीं हमको तो इसका देख अभी सिंपल है, एनवीडिया का लॉन्च का बाद हमको समझ में आ गया, लॉन्च का ऊपर हमेशा बिलीव नहीं करना है, पहले मार्केट में जब लॉन्च के ऊपर तो कोई में भी बिलीव नहीं करना है, लॉन्च का तो बोली मत। लॉन्च में भी तो एनवीडिया बहुत दिखाई था कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, 50% है। अते को तो पता ही है 3090 का क्या हालत है, प्राइस डबल है, परफॉर्मेंस 10-15-20%, वो भी इसमें। तो सोच अभी 3080 का तो तेरे को पता ही है मार्केट में फाउंडर एडिशन कितना सबको मिल जा रहा है। ओ सर मिल कहाँ रहा? वही तो हम बोल रहे हैं, इंडिया में नहीं मिलेगा, फाउंडर एडिशन इंडिया में नहीं मिलेगा, क्योंकि फाउंडर एडिशन लेने के लिए तेरे को वो वाला हिसाब चाहिए, गवर्नमेंट नौकरी में तेरे को सोच लगाना पड़ेगा। नहीं फाउंडर एडिशन तेरे को बिकने के लिए बना ही नहीं, फाउंडर एडिशन तेरे को एनवीडिया सिर्फ बोल रहा है एक्चुअली में हाथी का दांत है, एक्चुअल में हाथी का दांत है, सिर्फ दिखा रहा, फाउंडर एडिशन सिर्फ दिखा रहा है, बाकी जो भी है तुमको लेगा सब जाके लेना पड़ेगा थर्ड पार्टी का।
और थर्ड पार्टी में तो तेरे को पता ही है कितना अभी अभी प्रॉब्लम भी आया, मारा मारी चल रहा है। वो लोग कॉस्ट कटिंग के लिए कैपेसिटर बचा काट के चला रहा। सोच के देख, जो 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 70,000 रुपया 60,000 रुपया खर्चा कर रहा है, उसको फिर जो दिक्कत देगा उसको कितना झड़केगा उसका। तो एमआई तो रिफंड पॉलिसी तो निकाला है, बोला हम तो रिफंड करेंगे। अरे रिफंड करेंगे ठीक है, रिफंड करेंगे ठीक है। हम अगर कोई सामान खरीदें तो हम ऐसा सब लफड़ा में रहें। हाँ ये भी है, ऐसा सब लफड़ा में रहें, हम रिफंड करें, ये करें वो करें। सामान ईज ऑफ लाइफ देखना चाहता है। हाँ सामान खरीदेंगे कि हम रिफंड करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। नहीं ये तो बात सही है, बस ना ये नहीं आता। सबके पास इतना वक्त नहीं है कि हम प्रोडक्ट खरीदने के बाद इतना वक्त से प्रोडक्ट खरीदा, हम ग्राफिक कार्ड खरीदा, हमको गेमिंग करना, बस इतना प्रॉब्लम आ गया। मतलब किस तरह, मतलब एक इंसान का मूड कितना खराब होता होगा उस जगह। हाँ तो वही बात तो तब क्या करते हैं, तब कंक्लूड करते हैं इसके ऊपर में डिटेल वीडियो बनाएगा इसका ऊपर। हाँ एक शॉर्ट टर्म समरी वीडियो बनना चाहिए इसका, पर वीडियो बनाएंगे समरी का ऊपर कि हम। पर मैं सोच रहा कि जिसकी हमारे ऑलरेडी इसका वीडियो है कि Zen 3 में क्या है और रेडियन के में क्या है, तो मतलब कि इसका वीडियो बनाना है क्या। हमें वो प्रीवियस वीडियो में सब डिटेल्स तो दे ही दिया मैंने। हाँ वो बात तो है, लेकिन अब देखिए अभी जो बात तो आया बनाने का, अभी देखते हैं कि इसके ऊपर में क्या क्या देता है। अभी पूरा लॉन्च नहीं ना किया, अपना लाइनअप पूरा लॉन्च नहीं किया, सिर्फ 3 ही लॉन्च किया है। अभी और लाइनअप उसका लॉन्च करना है। Ryzen 3 नवंबर में आएगा, जो मिड बजट रेंज का आएगा। बजट रेंज का है तो सीपीयू उसका बिक्री होगा। अभी तक बजट रेंज का ग्राफिक कार्ड के बारे में कोई बातचीत नहीं हुआ कि हमारा 20 से 30,000 के अंदर कौन सा ग्राफिक कार्ड जो बजट रेंज वाला लेने का है तो जाओ बजट रेंज में जाओ, यूज़ ले लो, यूज़ ले लीजिए। जो बोले है ना, ऐसे लगे यूज़ दुकान में मिल जा रहा है, भाई हमको यूज़ चाहिए, यूज़ दे दो, हमको यूज़ चाहिए। हमको ये समझ में आता है सब टेक यूट्यूबर बोलता क्यों यूज़ लेने के लिए। भाई ठीक है नहीं, यूज़ मिलता है, ऐसा बात नहीं है नहीं मिलता है। सबके पास पीसी में इतना इंडिया में सबका जहाँ पे दिल नहीं है ना, जो आपको जाके एशिया का सबसे बड़ा है जहाँ पे आप जाके बिंदा ले ले। वो बात तो है, लेकिन अब OLX पे बहुत लोग भरोसा करते ही है। आप नेहरू प्लेस का पास जाके रहते हैं, आप जाके ले लिएगा सस्ता में सेकंड हैंड या फर्स्ट हैंड। बस नहीं है सबके पास नेहरू प्लेस नहीं है ना। आप कोई जैसे कि यूपी में रहा या फिर कोई कर्नाटका में रहा या कोई बैंगलोर में लगा, कोई अलग पंजाब में रहा, तो बोल लो क्या करेगा। अब बोल लो के लिए ऑस्ट्रेलियन का ऑप्शन है ना। हाँ तो वो बात तो है, सबके लिए ऑप्शन नहीं है, लेकिन देख जिसको मिल जा रहा है नसीब है, लेकिन जिसको नहीं मिल रहा वो क्या करेगा बता। अब उसको फर्स्ट मैं तो बोल रहा हूँ जिसको एक्सपीरियंस है वो भाई, तब आपको एक्सपीरियंस सेकंड हैंड लेने का तो आप बिंदास सेकंड हैंड लो, अच्छा डील मिल रहा है बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको एक्सपीरियंस नहीं है सेकंड हैंड लेने का तो भाई आप फर्स्ट हैंड लो। आप क्यों रिस्क ले रहे हो अपने पैसे के साथ। हाँ वो बात है, इतना रिस्क लेने का फायदा क्या। एक तो बजट रेंज में है, तो बजट रेंज में पैसे के साथ रिस्क लेना कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे आप सेफ खेलो अपना। हाँ अच्छा पैसा आप कोई भी ग्राफिक कार्ड लो ना, कोई इशू नहीं है, पर आपका बजट रेंज आप एक एक पैसा जमा करके ग्राफिक कार्ड ले रहे हो या फिर प्रोडक्ट ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, ऊपर से नया प्रोडक्ट यूज करने का फिर मजा अलग है। सेफ है, सेफ प्ले है, सेफ 6 महीना नया हार्डवेयर नया यूज करेगा, तो उसको सही से यूज करेगा, स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा, नया यूज करेगा उसको। मतलब उसका फुल पोटेंशियल वही निकालेगा जो खरीदी से, वो नहीं कि भाई जो खरीद ली से वो उसको कितना यूज़ करके चूस लिया है उसका बाद तेरे को बेच रहा है। पता नहीं चलेगा चांद तक, नहीं तो शाम तक। किसी को मेन तो बात, हम लोग का अभी बजट रेंज का भी वीडियो आने वाला है भाई। 5,000 है, आपका 10,000 का भी आने वाला है। परसों तक आपको 5-10,000 का वीडियो मिल जाएगा। हाँ वीडियो बनाना ज़रूरी है। पब्लिक को अभी क्लियरली पता नहीं है, कि इसको अगर उसका पास 5,000 रुपया है या 10,000 रुपया है तो उसका पास क्या क्या ऑप्शंस है, ऑप्शंस पता नहीं है पब्लिक को। नहीं देख क्या ना, मैक्सिमम टेक यूट्यूबर बोल दिया भाई इतना में गेमिंग होता नहीं है, आपको यूज लेना पड़ेगा, हायर एंड का ग्राफिक कार्ड यूज उतना लेना में, पड़ेगा। लेकिन लो बजट में भी गेम है, ऐसा बात नहीं है, नहीं होता एकदम में लो बजट में। अब भाई मेरा पास अगर पैसा नहीं है तो क्या हम गेम नहीं कर सकते, ऐसा बात नहीं है। वही तो गेम में सबका क्या भाई, सिंपल है बजट के। अरे इंडिया में सबसे ज्यादा सेल कौन सा ग्राफिक कार्ड हुआ? 2060 सुपर, 2080 है नहीं,
2070 नहीं, 1660 Ti, 1660 सुपर, 1650, 1050 Ti, ये सब ज़्यादा सेल हुआ। इसका मतलब क्या? बजट ही खोजता है। इसका मतलब भाई पब्लिक का पास, जो मास पब्लिक है उसको बजट रेंज में चाहिए। हाँ, बजट ही जिसका पास चाहिए। अंधा पैसा है वो तो फिर 3090 लेने वाला पार्टी है, लेकिन बाकी तो पब्लिक 1650, 60, 1050 यही सब लेगा। 3090 हम बताए, 3090 अंधा पैसा लोग ये जो ना, हमको तो डाउट है कि अंधा पैसा रहने का बाद भी अभी 3090 मिलने वाला नहीं है तो हाँ, एक ही बात बोल रही हैं, आपको अगर हाई एंड ग्राफिक कार्ड लेना है तो पहले आप ये समझो कि आपको ग्राफिक कार्ड में यूज क्या क्या करना है, आप उतना यूज कर पाओगे उसको। हाँ, अगर वो बात ले भी लिए है। पर आपको यूज नहीं कर पाओगे तो फायदा नहीं है लेने का, आपको पैसा अपना आप फंसा रहे हो। आप सोच डिसाइड करो, हाँ गेमिंग करना, स्ट्रीमिंग करना, ये सब करना, हमको कौन सा ग्राफिक कार्ड इसके अंदर मेरा हो जाएगा विथ ईज, मतलब कोई लैग नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तब आप जाके लो। अब नहीं, हमको सिर्फ गेमिंग ही करना है तो कोई फायदा नहीं है ना, आप मतलब उसका यूज ही नहीं करोगे उस ग्राफिक कार्ड का, मतलब उसका पोटेंशियल निकाल रहे हो। हम लोग क्या देख के पर ले लेते हैं पर यूज ही नहीं कर पाते ना। आप किसी को मालूम है नहीं कि 710 में भी आपका रीडिंग हो जाता है, GT 710 में एडिटिंग होता है, 710 में बोल, 610 में बोल, एडिटिंग करने का रहेगा, सब में होगा। लेकिन अब देख, आदमी एक्सपीरियंस चाहता है, तो अब भाई अभी कोई आदमी सोचता है कि भाई मेरा पास अगर हाई एंड ग्राफिक कार्ड नहीं है तो मेरा कुछ काम नहीं होगा। हाँ, ऐसा बात नहीं है, लो एंड में भी काम होता है, लेकिन एक्सपीरियंस का बात है। हमको यहाँ से अगर घर जाना, स्मूथ एक्सपीरियंस मिलना है, देखो, कि गाड़ी में जाना है। हाँ पैदल जाना है, गाड़ी में जाना है कि हेलीकॉप्टर में जाना है, अब भाई जाना तो सभी से जा ही सकता है। अब जिसका जितना बजट है वो हिसाब से लेगा। हमको भाई ऑटो से जाना तो हम ऑटो से जाएंगे, हमको एडिटिंग करना है 1080p में तो हम 710 में भी कर सकते हैं, हमको एडिटिंग करना है 1080p में तो हम 1660, 2060 सब में कर सकते हैं। लेकिन टाइमिंग का फ़र्क होगा, एक्सपीरियंस का फ़र्क होगा। स्मूथ एक्सपीरियंस तुमको 1660 में नहीं, उससे ज़्यादा अच्छा मिलेगा 2060 में, 2080 में मिलेगा, 3080 में मिलेगा। बस वही है, बस उसका पैसा भी उतना ही लगेगा, जितना एक्सपीरियंस में करना चाहिए उतना उसका पैसा मिलेगा, पैसा लगेगा। ठीक, ऐसा बात नहीं। हाँ, ऊपर से रेंट, हाँ कुछ डिवाइस का स्पेसिफिकेशन है जो मतलब कि जो हाई एंड ही चाहिए जिसको, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी भी ऑप्टिमाइज हो रहा है, ऑप्टिमाइजेशन है। लेकिन हाँ, पब्लिक को चाहिए ऑप्शन, पब्लिक को जितना ऑप्शन मिलेगा पब्लिक को उतना फ़ायदा है। तो पब्लिक को बस अगर हम बोलेंगे कि सिर्फ 2080 या 2070 में तुम गेम खेल सकते हो, उससे नीचे में कोई गेम चलेगा ही नहीं, तब फिर पब्लिक को दिक्कत होगा, तब कंपनी का फ़ायदा होगा। लेकिन पब्लिक का पास ऑप्शन रहेगा कि हम वही गेम 1660 में भी खेल सकते हैं और वही गेम हम 3090 में भी खेल सकते हैं, तब पब्लिक का यहाँ फ़ायदा होगा। जितना ऑप्शंस मिलेगा हमको कंपनी की तरफ से, मेरा उतना फ़ायदा होगा, पब्लिक का उतना फ़ायदा होगा। देखिए, अगर ये वाला प्रोसेसर तो है, ओपी प्रोसेसर निकाला है AMD, आप प्रोसेसर का पर इसका तो प्राइस रेंज में और इसका नीचे लो एंड निकालता है। लो एंड निकालेगा तो बोला है, तो लो एंड तो निकालेगा नवंबर तक। देख 6 और 12 थ्रेड है, इससे लो एंड कोई जाएगा नहीं। अब प्रोसेसर ले लो 6 कोर 12 थ्रेड ही लो, उससे नीचे मत लो। 4 कोर 4 थ्रेड लेके नहीं, क्योंकि आप जो 4 कोर में जो स्पीड मिलेगा आपको 6 कोर में वही स्पीड मिलेगा, क्योंकि आपको मालूम ही है आपका कैच लेआउट पूरा CCX से कैच लेआउट हो गया, पूरा चिपलेट हो गया, आपका CCX से पर चिपलेट हो गया। तो मतलब जो हमारा 4 कोर में स्पीड मिलेगा वो आपका 6 कोर में वही स्पीड मिलेगा। अगर आप लेना है तो आपको 6 कोर 12 थ्रेड लो, उससे नीचे मत लो। अगर आपको गेमिंग करना है, एडिटिंग करना है, स्ट्रीमिंग करना है, 6 कोर से नीचे नहीं तो तेरे को बजट और पब्लिक को बनाना पड़ेगा ना कि भाई ई बजट में तुम इतना लेवल का गेमिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो, ई बजट में तुम इतना लेवल का गेमिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो, उससे ज़्यादा का नहीं। हाँ, अब अगर आपको 6 कोर का नीचे प्रोसेसर लेना है, AMD लाता है 4 थ्रेड आता है, या 4 को या 8 थ्रेड लाता है, 8 थ्रेड 4 को 8 थ्रेड लाता है, तो आप उस लेवल के परफॉर्मेंस ही मिलेगा, 4 कोर 8 थ्रेड वाला ही मिलेगा। नहीं तो अब, लेकिन अभी भी पब्लिक इतना तो लास्ट में देखे ना स्ट्रीम का निकला था लिस्ट, जिसमें अभी भी पब्लिक 2 कोर पे गेमिंग कर रहा है। अभी भी सोच के देख, अभी 2020 है, 2 कोर में पब्लिक अभी भी कितना परसेंट लोग, 20-40% पब्लिक लोग 2 कोर में गेमिंग कर रहा है। तो सोच के देख, 2 कोर में गेमिंग अभी का टाइम में 2020 में।
ये 2008 10 12 नहीं ना, 12 15 नहीं है कि अरे वही तो बात है ना, गेमिंग करना सबका हक है। आप जरूरी नहीं आप पैसे वाले हो तो आप ही गेमिंग कर सकते हो। हम जैसी को 20 या 25 हजार पीसी बिल्ड कर रहा है तो 15 हजार बिल्ड कर रहा है, वो गेमिंग नहीं कर सकते, कहीं लिखा हुआ थोड़ी ना है। तो डिपेंड करता है ना स्मार्ट यूज से। अब जो प्रोडक्ट अवेलेबल है उसका बेस्ट यूज़ करके हम इतना ही बजट। हाँ स्ट्रीम कुछ हुआ, स्ट्रीम रुक गया। हाँ सॉरी स्ट्रीम प्रॉब्लम हो तो रुक गया था मैं। हाँ मैं बता रहा था कि आप 6 बात आपको गेमिंग स्ट्रीमिंग सब करवा दे, 6 बात है, कोई इशू नहीं होगा। आज के टाइम में आपको अच्छा लेवल का गेमिंग स्ट्रीमिंग करा सकता है, क्योंकि देखिए मैं मेरा भी जो सिस्टम है इसमें मेरा 6 कोर है, 6 कोर वाला सिस्टम है, इसमें मैं स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ, मुझे कोई इशू नहीं हो रहा अभी तक, तो मुझे कोई इशू नहीं हुआ है। तो मतलब इसका मुताबिक आप 6 कोर बात में आप गेमिंग के साथ स्ट्रीमिंग के साथ आराम से कर सकते हैं, 1080p में आराम से कर सकते, कोई इशू नहीं होगा इसके रिगार्डिंग। आपको डिपेंड करता है। पर अभी अगर पीसी बिल्ड कर रहे हो तो आप 16 सीरीज ही लो, उससे हाई एंड मत लो। मैं नहीं बोलूंगा कि आप 2060 लो, मैं मना करूंगा, क्योंकि उस प्राइस रेंज में अभी और ग्राफिक कार्ड लोअर लैंड के लिए ग्राफिक कार्ड आने वाले हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये प्राइस रेंज को छोड़ देगा। ये जो 15 से 25 या 30 हजार के अंदर का प्राइस रेंज उसके बीच में ग्राफिक कार्ड नहीं आएंगे। ये अरे 2020 में नहीं आएंगे, हाँ, पर 2021 में कंफर्म। तो अचानक से हाँ वो तो है तब। क्योंकि ई प्राइस रेंज में ही बिजनेस है अच्छे। बिजनेस तो कम ही रेंज में है, बिजनेस तो जितना बजट रेंज में ही है बिजनेस उसका, उसका बजट रेंज में ही बिजनेस है। AMD का तो अभी दोनों हाथ से लपेटेगा वो, दोनों हाथ से। अब भी अगर सिस्टम बिल्ड करना तो ये Zen 3 आने दो, परफॉर्मेंस देख लो, बेंचमार्क Zen आ 3 जाए, तो उसके अब बाद आ Zen ही 3 कर गया लो। है, अब तो लॉन्च तो कर ही दिया है, बस अब वेट करना है कि उसका क्या प्रोसेसर जितना बात किया है 26% बूस्ट का, वो किस तरह से हर कंडीशन में बेंचमार्क उसका आ जाए, टेस्ट हो, हार्डवेयर टेस्ट हो, उसका बाद सही से देखे, उसको स्ट्रेस टेस्ट हो करके देखेंगे। वो तो वो लोग फैक्ट्री टेस्ट करके बताया है। अब जब पब्लिक लेगा, स्ट्रीमर लेगा, रिव्यूअर लोग लेगा, उसका बाद उसको रिव्यू करेगा, स्ट्रेस टेस्ट करेगा, उसका बाद देखते हैं उसका कितना आता है। उसका बाद देखा जाएगा कि वो प्रोसेसर जितना AMD बोला है उतना अचीव कर पा रहा है कि नहीं। हाँ एक बार अचीव कर लेता है तो उसके बाद आप पीसी बिल्ड। और मेन मेन एक अच्छा बात क्या है इसका, सबसे अच्छा बात ये है AMD के प्रोसेसर के साथ इसका सारे मदरबोर्ड में आपको जो PCI Express 4.0 मिलता है। हाँ अभी तो 550 में तो अभी दे रहा है ना ऑप्शन। और PCI Express 4.0 मिलेगा। और अभी भी इंटेल हमारा अभी भी PCI Express 3.0 में ही इंटेल है। को हमको पता नहीं क्या हो गया, वो लग रहा है घोड़ा बेच के सो रहा है ना, क्या कर रहा है, या तो एक बार उठेगा। इंटेल का पास लगता है बहुत बड़ा प्लान है जो आदमी आराम से निकाले। पहले AMD का कर, AMD जितना खेल खेलना इसका अपना पत्ता खोल लो भाई, थोड़ा इतना पत्ता भी है, इंटेल एक ही बार में पत्ता खोलेगा। AMD एक अपना इंटेल अपना निकालेगा, या फिर AMD का इंटेल का आइडिया खत्म हो गया, या इंटेल का जितना आइडिया वाले थे सब AMD में चले गए, ऐसा भी हो सकता है। देख हो भी सकता है कि इंटेल के पास शायद क्रिएटिविटी अब खत्म हो गया, उनके पास नहीं है। हो सकता है अभी इतना तो कंपनी इतना आगे शायद हाँ ढील दिया, AMD को ढील दिया कितना देखे। अब इतना साल से इंटेल मार्केट लेकिन में इंटेल ऐसे अभी तो भी नहीं है ना गेमिंग में मार्केट। था, लेकिन अब देखिए AMD तो आ गया है, अब देखते हैं गेमिंग में कौन आगे रहेगा। देख इंटेल का नाम फर्स्ट सिर्फ देख था अभी गेमिंग का वजह से। अब देख लेट क्लियर गेमिंग में क्यों है, क्योंकि जो ग्राफिक कार्ड जो बनता है उसको प्रोसेसर भी ऑप्टिमाइज प्रोसेसर, इंटेल का प्रोसेसर को दिमाग में रख के ग्राफिक कार्ड बनाता है, एनवीडिया ग्राफिक कार्ड जो बनाता है इंटेल का प्रोसेसर को दिमाग में रख के बनाता है। देख मैं आपको क्लियर कर दूं कि एनवीडिया जितना 3080 3070 3090 सब इंटेल का प्रोसेसर का ऊपर चेक किया, AMD का थ्रेडिटर या चेक नहीं किया। ऑफिशियल एनवीडिया इंटेल का ही ऊपर चेक किया, AMD का पर क्यों नहीं बेंचमार्क किया अपना उस ग्राफिक कार्ड।
हाँ पब्लिक तो लेकिन AMD लेगा ना, तो इंटेल का कितना देख इंटेल का इसलिए चेक किया कि इंटेल का 5 लोग FPS बेसी मिलेगा क्योंकि इंटेल का प्रोसेसर दिमाग में रख के बनाया है। ठीक है, लेकिन ये अभी सोच। AMD जो आ गया ना 5000, अब देखते हैं मार्केट में कैसे करके आता है। अभी भी बाकी है 3070। अब AMD अब Nvidia तो AMD के प्रोसेसर कभी कंसीडर करेगा नहीं, सोच के इंटेल को हमेशा प्रेफर करेगा क्योंकि Nvidia जानता है AMD उसका कॉम्पिटिटर है। तो हमेशा Nvidia में आपको AMD इंटेल में आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिल सकता है आगे भी, क्योंकि Nvidia इंटेल को प्रेफर करेगा अच्छा परफॉर्मेंस देने का प्रोसेसर के रिगार्डिंग, तो गेम अच्छा चले इंटेल में AMD से भी। ठीक है, तब काम करते हैं इसका, बना तब इसका वीडियो बना, तब एक इसका ऊपर में वीडियो बनाते हैं। और खैर चल अब ख़त्म करते हैं स्ट्रीम। चलिए 50 मिनट हो चुका है, तो अब आप बोल दीजिए अपने चैनल के बारे में। हम हाँ, अगर आपको अब जानना है Zen 3 के बारे में कि उसका कैच लेआउट क्या है, Zen 3 कैसे काम करेगा, उसके क्या फीचर है, उसका आर्किटेक्चर क्या है, तो आप वीडियो आप जाके चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। और आपके रेडियन के बारे में जानना, रेडियन में क्या आर्किटेक्चर है, कितना रैम आने वाला, क्या प्राइसिंग हो सकता है उसका, तो उसके ऊपर ही मेरा वीडियो बना हुआ है। और Nvidia वाले ग्राफिक कार्ड था जो आने वाले हैं जो रिसेंटली, उसके ऊपर भी वीडियो बना हुआ, वो भी आप जाके हमारे चैनल में देख सकते हैं। तब ठीक है, तो तब ख़त्म करते हैं तब। हाँ, तो आपसे आप देख लेते हैं। आपका शुक्रिया।